Hello everyone. Today we are going to discuss regarding angiosperms, that is flowering plants. In the previous videos already I have discussed regarding algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms. In this video we will learn few basic things about angiosperms. Whatever content I have taken is from the NCERT books. So here what are we saying? Angiosperms means this category will have all the plants which bears flowers, and most important feature is these will have seeds present within the ovary. That is, it is not naked just like gymnosperms. In gymnosperms what happened? Their seed were naked, it was not covered by ovary, right? But here we can see it clearly that seeds are covered within the ovary, or you can say fruit. So now we will see it in detail. Here I have kept all these parts first because you will understand it well what is its main characteristic. So it is the picture of a typical flower of angiosperm. So first of all we will know what is whorl, right? So arrangement of sepals, petals, anther, stamen and pistil in an axis. Okay, सो स्टेप वाइज जो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं एक एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये अटैच्ड रहते हैं बेस पे, एक बेस पे, ठीक है. तो यहाँ पे ये बेस हो गया पेडिसेल, एंड यहाँ पे दीज आर सेपल्स जो ग्रीन कलर के हुए. तो ये एक वर्ल बनाया दैट विल बी नोन एज कैलिक्स. सो ऑल द सेपल्स will form calyx, that is the first whorl. Second will be petals. Petals are colorful, right? So petal will come to the next whorl and it is known as corolla, right? Next will be pistil. Pistil is the female reproductive part of the flower, right? And it forms the third whorl that is known as gynoecium, and fourth one will be the androecium, which contains the male reproductive part that is known as stamen. So what we have seen, that is first one is the calyx, then corolla, then gynoecium, and finally androecium. So these are the four whorls of flower. Now you can see here this part, it is ovary, right? And this structure cylindrical is the style, and tip पे जो है that is stigma. और ये तीनों किसके पार्ट हुए? तो पिस्टिल के पार्ट हुए. और स्टैमेन जो होते हैं उसमें ये अपर मोस्ट पार्ट हो जाता है एंथर, और जिस सिलेंड्रिकल पार्ट से ये अटैच रहता है टू द बेस इज नोन एज फिलामेंट. तो ये तो स्ट्रक्चर हो गए एक टिपिकल फ्लावर के वॉल्स एंड स्ट्रक्चर. अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले you can see within the ovary there is small structure. These are ovules, and within the ovules female gametophyte will be produced, and here in the anther male gametophyte will produce. So male and female gametophyte will unite to form the seed, and after the formation, or you can say after fertilization, that is post fertilization, this ovary will get converted into fruit. So finally जितने भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतने सीड के फॉर्मेशन होंगे, और वो सीड कहाँ पे रहेगा? ओवरी बाद में मैच्योर होके बन जाता है फ्रूट. वो जितने सीड्स होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर? फ्रूट के अंदर. दैट इज व्हाई इट इज covered.
It is not naked and it is the most important feature of angiosperms. अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि आप आगे जाएंगे 12th में भी आपको ये पढ़ना है, एंड आई थिंक आगे के चैप्टर में भी ये शायद मेंशन किया गया है, और ये बेसिक भी है, जानना चाहिए सबको. तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ये है स्टैमेन, दिस इज़ द फिलामेंट, दिस इज़ द एंथर. तो इसे जब हम यहाँ से कट करेंगे तो इट विल अपीयर लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या है, पोलन सैक है, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द पोलन सैक, और इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. फिर फर्दर इसको मैग्नीफाई करके हम देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो दीज 4 यहाँ पे ये जो राउंड आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया. एंड पोलन सैक जो होंगे उनके अंदर तो बहुत सारे सेल्स होंगे, राइट. दीज आर मल्टी सेलुलर. सो प्लांट्स ही मल्टी सेलुलर है, सारे स्ट्रक्चर इसके बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. तो पोलन सैक के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं. वो डेवलप हो जाएंगे जब ग्रो करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ठीक है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, दोज आर प्रेजेंट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक. पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं. और इसमें लेयर्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर जो हो गया, एक तो हो गया जो सबसे सेंटर में है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. जब वो मैच्योर होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और टैपेटम उसको सराउंड करता है, बिकॉज टैपेटम कंटेन्स द स्टोर्ड फूड and it provide nourishment to the developing microspore mother cells and further to the developing microspore. ठीक है, तो अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल हाईली एक्टिव हो जाएंगे, और वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट है. वो उनमें मियोटिक डिवीज़न होगा, जो कि होता है रिडक्शनल डिवीज़न. तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये एक सेल है, उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे 4 सेल्स, राइट. और ये सारे के सारे रहेंगे हैप्लॉइड, और सारे फिर ग्रो कर जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे किस में, तो माइक्रोस्पोर्स में. ठीक है, और ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा है, तो पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. और माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी है, यू कैन सी, ये 4 हैं, दैट इज़ पोलन सैक. ठीक है, और ये फिर यहाँ जो डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस बोला गया है, जब ये मैच्योर हो जाएगा फुली तो ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से, एंड देन एंथर विल बर्स्ट एंड पोलन ग्रेन्स विल गेट रिलीज्ड. तो माइक्रोस्पोर जो बन जाते हैं स्पोर्स, दैट इज़ नोन एज पोलन ग्रेन्स. ठीक है, वही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा यहाँ से. तो ये सारे बात हो गए. उसके बाद आते हैं किस पे, तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल पे. ठीक है, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं वो पूरा का पूरा पार्ट प्रेजेंट है विद इन द ओवरी. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी दिस पार्ट इज द फ्यूनिकल, इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी. ठीक है, ये फर्दर ओवरी वॉल से अटैच रहेगा ऑब्वियसली. तो ओवरी वॉल से जो अटैच रहता है जिस पोर्शन, जिस भी पार्ट से, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा का ये जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं फ्यूनिकल. फ्यूनिकल हो गए, राइट. एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम. तो ये हो गए. फिर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्स क्या हो गए कि ये लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स. ठीक है, दीज आर द लेयर्स, 1 लेयर 2 लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनर एंड आउटर लेयर. दीज आर इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, दीज प्रोटेक्ट्स
द ओव्यूल, ठीक है। और इसीलिए ओव्यूल की जो आउटर वॉल यू कैन कंसीडर इट प्रोटेक्ट द इनर डेवलपिंग फीमेल गैमीटोफाइट, राइट। और माइक्रोपाइल, अब ये जो इंटेग्यूमेंट है ये पूरा तो सराउंड कर लिए हैं, बट यहाँ पे ये पोर्शन ओपन फॉर्म में है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो पूरा का पूरा कवर्ड नहीं हुआ है, माइक्रोपाइल इस पोर्शन को बोलते हैं। और जब माइक्रोपाइल जो रहते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि उस तरफ से जब सीड बन जाएगा तो ये ग्रो करेंगे, ठीक है, उधर से जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा। नाउ द पोर्शन इज चैलेजा। चैलेजा इज द बेसल पार्ट, राइट, it is the basal part of the ovule. Now the nucellus. Nucellus is the mass of cells enclosed within integuments used for food storage, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट के बाद वाला जो लेयर हो गया, ये वाला लेयर, सॉरी आपको दिख रहा होगा क्लियरली, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट हो गया outer layer, inner layer, and then nucellus. So nucellus will contain the cells within which food are stored. और ये फूड स्टोर होके रहते हैं। फर्दर जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन फाइनली दिस पोर्शन इज द embryo sac that is known as female gametophyte. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। एक मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होंगे न्यूसेलस के अंदर, वही सेलेक्ट हो जाते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो मेगा स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, राइट। मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे जिसमें कि 3 सेल जो होंगे, 3 सेल्स विल गेट degenerated and only 1 cell will be selected to further development. इसका further development होगा किसमें, तो एम्ब्रियो सैक में। तो फर्स्ट डिवीज़न हुआ और माइटोसिस होगा इसमें, राइट। जो सेल बच गया उसमें माइटोसिस हो रहा है, तो ये कितने सेल बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। और इसमें भी n, इसमें भी n, ठीक है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले से प्रेजेंट था, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था, उससे 4 सेल्स बने थे जिसमें से 3 डीजेनरेट कर गए और 1 बच गए जो सेलेक्ट हो गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसमें माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीज़न, इसीलिए यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने शो किया है। तो ये 2 सेल बन गए। यहाँ पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, ठीक है। फिर फर्दर डिवीज़न होगा तो अगेन 4 सेल विल बी फॉर्म्ड। फिर जब और एक 3rd डिवीज़न होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियस विल गेट फॉर्म्ड, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा और उस टाइम में क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस अभी तक हुआ नहीं है, 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं सेल के अंदर में। उसके बाद जब 8 न्यूक्लियस बन गए उसके बाद साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट होगा, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और न्यूक्लियस जो होंगे अरेंजमेंट हो जाएगा उनका। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे आके बनेंगे, इसके सराउंडिंग आपके बन जाएंगे क्या, सेल वॉल इसमें बन जाएंगे ऐसे। तो 3 सेल्स कहलाएंगे एंटीपोडल्स। 2 न्यूक्लियाई जो होंगे यहाँ पे हो गए पोलर न्यूक्लियाई, एंड यहाँ पे 3 सेल्स बन गए जो कि इसमें से एक हो जाता है एग और 2 हो जाते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। तो टोटल कितने सेल्स बने, 8 न्यूक्लियस, तो वो तो क्लियर हो गया, ठीक है, 8 न्यूक्लियस बने।
1 से बना 2 सेल्स, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में। उसके बाद इससे बन गया 4, फिर फर्दर 4 से कितने बन जाएंगे, 2 2 2 4 8 बन जाएंगे। तो 8 न्यूक्लियाई बन गए, ये क्लियर है। अब नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 सेल्स दिख रहे हैं एंटीपोडल्स, ठीक है, 3 सेल्स हो गए। यहाँ पे 3 सेल दिख रहे हैं, ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। अभी ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ऐसे ही सस्पेंडेड है, किस में, ये टोटल बड़े वाले सेल में। इसीलिए न्यूक्लियाई जो हो गए वो तो 8 हैं, बट सेल्स जो होंगे वो 7 हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे कि ये तो हो गया, फिर फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन हुआ, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा ऐसे, दिस पोर्शन फिलीफॉर्म apparatus। तो ये क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। जब पॉलन ट्यूब ग्रो करके आएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो ये गाइड करता है कि तुम एग सेल के पास जाओ एंड फर्टिलाइज करो इसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट में क्या होते हैं कि जैसे ये, मैं बताती हूँ, एक सेकंड। जैसे ये हो गया पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे यहाँ पे फॉल करेंगे, ये पिस्टिल पे है, स्टिग्मा पे। इसका ये पोर्शन जो स्टिग्मा होता है, ये टोटल हो गया पिस्टिल, ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल। तो जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे तो ये ट्यूब ग्रो करेंगे, ठीक है, और इससे ग्रो करके ये यहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पे, तो इनके पास पहुँचेगा ये। फिर ये इसमें से 2 न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसमें भी एक बार क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होता है। एक तो न्यूक्लियस होंगे यहाँ, और एक छोटा सा सेल डेवलप होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो फिर क्या, जब जर्मिनेट करेंगे तो ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो आएंगे, और फिर इसमें से एक न्यूक्लियाई जो होगा मेल गैमेटोफाइट, दैट विल बी यूनाइट विद द और फ्यूज़ विद द एग सेल, एग सेल से फ्यूज़ कर जाएंगे और बनाएंगे जाइगोट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सिनगैमी, ठीक है। और एक न्यूक्लियाई आएगा जो कि फ्यूज़ होगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, तो 3N वाले सेल बन जाएंगे, ठीक है। और ये फर्दर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल बना इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूज़न, इन दोनों को मिला दो तो हो जाता है, इस प्रोसेस को बोल देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म में। मैनी एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जाइगोट जो होंगे वो डेवलप कर जाएंगे किस में, तो एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट बन गया किस, मैंने बताया था सिनगैमी की वजह से, और जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो विथ कॉटिलेडन। एम्ब्रियो भी होंगे और कॉटिलेडन्स भी होंगे। कॉटिलेडन्स क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। उसके बाद एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बने थे,
वो फिर डेवलप कर जाएंगे एंडोस्पर्म में, एंड दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और कोटिलेडन में भी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। लेकिन कहाँ, एंडोस्पर्म्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जब तक वो सीड बनता है, ठीक है, एंडोस्पर्म तब तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब जर्मिनेशन हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस वो सीड जो उसमें एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करके बाहर निकलेंगे ज़मीन में, रेडिकल एंड प्लूम्यूल का जब जर्मिनेशन हो जाएगा वो बाहर निकलेंगे, ट्रू लीव्स नहीं बनेंगे, तब तक कोटिलेडन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन आफ्टर द जर्मिनेशन मेनली। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। फिर क्या हो जाता है कि सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स ये सारे तो डिजेनरेट कर जाएंगे ऑब्वियसली, एंड ओव्यूल जो हो जाएंगे वो डेवलप कर जाएंगे सीड में, ओवरी डेवलप कर जाएंगे फ्रूट में सॉरी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है इसका। और फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक चीज़ में, जैसे कि मैं होती थी अपने स्कूल टाइम में कि प्लूम्यूल क्या होता है लाइक दिस, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। तो यहीं पे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कोटिलेडन हो गया 2 डाइकोटिलेडन। इस कोटिलेडन के बेसिस पे फिर कैटेगराइज किया गया है एंजियोस्पर्म्स को, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो जिस भी सीड में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है वो होंगे डाइकोटिलेडन प्लांट, और जिस प्लांट में जो सीड प्रोड्यूस होंगे उसमें एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएंगे मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो गया, ये इसके नीचे हो गया क्या, रेडिकल। ठीक है, ये हो गया कोटिलेडन। इसके जो टिप पे जो पोजीशन होता है ये होता है प्लूम्यूल, और ये होता है एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल ये पूरा हो गया। हाइपोकोटाइल, इसके ये जो यहाँ पे अटैचमेंट हो गया ये हो गया यहाँ से नीचे जो हो गया वो हो गया हाइपोकोटाइल, एंड दिस पोर्शन इज एपिकोटाइल। ठीक है, ये पूरा, और यहाँ पे एपिकोटाइल होता है, सॉरी प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो हो गया यहाँ पे कोटिलेडन का, उससे नीचे हो गया हाइपोकोटाइल, उससे ऊपर वाले एपिकोटाइल। यहाँ पे होता है रेडिकल, यहाँ पे होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल विल गेट डेवलप इनटू ट्रू लीव्स। ठीक है, और ये जो होगा वो रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म देख रहे हैं। तो इट्स हैबिटेट इज़ वाइड रेंज, मतलब कि ये बहुत ही तरीके के हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। और साइज़ क्या होगा, स्मॉल से लेके पूरा टॉल ट्री 100 मीटर्स तक। तो ये जो होगा ये वुल्फिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, एंड दीज आर द यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस कितने होते हैं, 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं इसमें। तो ये हो गया। फिर प्लांट्स का यूज़ किस में होता है, फूड, फॉडर, वुड, फाइबर्स, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड वेरियस अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, दैट इज़ कोटिलेडन, एम्ब्रियोनिक लीफ के आधार पे। तो एक कैटेगरी आया डाइकोटिलेडन, अगर उसमें 2 कोटिलेडन है, मोनोकोटिलेडन मीन्स 1
कॉटिलेडन सीड में प्रेजेंट है। फिर विनेशन आ गया, विनेशन इन लीव्स। तो डाइकोटिलेडन्स में ये लीव हो गया, ठीक है, ये स्टेम है, ये इसके अटैचमेंट है, यही फर्दर स्टैंड करके मिडरिब बन जाते हैं, ठीक है। पिट्यूल जो है वो फर्दर एक्सटेंड करके मिडरिब बनते हैं और इससे वेन्स अराइज होते हैं। तो ये डिवाइडेड होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ दैट इज़ नोन एज रेटिकुलेट एंड इट इज़ सीन इन द डाइकोटिलेडनस प्लांट। मोनोकोटिलेडन में पैरेलल विनेशन होते हैं। तो वो कैसे होंगे? ऐसे लीव्स हैं एंड इट विल बी अरेंज्ड लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर विल बी प्रेजेंट इन द डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में ट्राइमेरस यानी कि 3 पेटल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, किसमें? तो मोनोकोटिलेडन में। अभी ये एग्जाम्पल हो गया एक तरह से डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन का। फिर डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन सीड देखते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, दिस इज़ द डाइकोटिलेडन सीड एंड इट इज़ मोनोकोटिलेडन सीड। यहाँ पे एम्ब्रियो है यहाँ, ठीक है, और ये कोटिलेडन्स हो गए। तो यहाँ पे एम्ब्रियो में क्या देख रहे हैं? हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एपिकोटाइल, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। और सीड कोट, आउटर मोस्ट कवरिंग इज़ द सीड कोट। मोनोकोटिलेडन में क्या हो रहा है? सीड कोट तो है, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा एल्यूरोन लेयर भी होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, अगेन इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओके। कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है? एक्चुअली इट विल रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है? जो एंडोस्पर्म में जो स्टोर होके रहते हैं फूड, उसको कन्वर्ट करता है, सिंप्लीफाई करता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। स्क्यूटेलम इज नथिंग बट इट इज अ कोटिलेडन, ओके, कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स। कोलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, ये हो गया एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द कोटिलेडन। प्लिम्यूल डेवलप होते हैं किसमें? लीफ में और शूट में। रेडिकल डेवलप हो जाएंगे किसमें? रूट्स में, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। तो प्लिम्यूल शूट को बनाएगा एंड रेडिकल रूट को बनाएगा। कोलियोप्टाइल का क्या फंक्शन हुआ कि ये जब जर्मिनेशन होने लगता है तो ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, इस वियर एंड टियर नहीं होने देगा, ठीक है, टूटने फूटने नहीं देगा। सेम फंक्शन होता है कोलियोराइजा को, जब रेडिकल निकलने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एम्ब्रियो जो हो गए वो 3 पोर्शन इसके हो गए, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। एल्यूरोन लेयर का मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी। एल्यूरोन लेयर नेक्स्ट टू द सीड कोट सराउंडिंग द एंडोस्पर्म्स इन monocot seed. During seed germination, alluron layer releases hydrolytic enzymes such as hydrolases to break down starch and proteins stored in the endosperm to make the nutrients available to the germinating embryo. ठीक है। Scutellum is the cotyledon of monocots. Coleorhiza protect radical, coleoptile protects plumule. ये हो गए। अभी यहाँ पे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप कि क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। तो अभी तक सारा फंडामेंटल क्लियर हो गया है, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें एबिलिटी होता है कि जो हैप्लॉइड सेल है वो भी एक इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो सकते हैं, दैट इज़ एबिलिटी टू अंडरगो माइटोसिस। जो हैप्लॉइड सेल हैं उनमें भी, जो डिप्लॉयड है उनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड विल फॉर्म प्लांट बॉडी। तो जो डिप्लॉयड सेल से बॉडी बनाते हैं दैट इज़ नोन एज स्पोरोफाइट, और जो हैप्लॉइड सेल से बॉडी बनाते हैं दैट इज़ नोन एज गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट
इज़ द प्लांट बॉडी दैट इज़ डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है इनमें, और इन्हीं के बॉडी के ऊपर फ्लैर होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया स्टार्टिंग में कैसे डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स एंड कैसे डेवलप हो जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो वैसे यहाँ पे जैसे ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाता है फिर पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन यहाँ पे पिस्टिल पे फॉल करेगा, देन एम्ब्रियो सैक के साथ यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल डेवलप फर्दर इनटू एम्ब्रियो। तो ये जो पोर्शन हो गया यहाँ तक के दैट इज़ एंड इट इज़ नोन एज गैमेटोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हैप्लोइड हैं, क्योंकि यहाँ तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गया और ये बनाया क्या, बनाया एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और फिर माइक्रोस्पोर एंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जो कि डेवलप किया माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस, और यहाँ से ये भी है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें। तो ऐसे करके फिर यहाँ से जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।